Hi everyone, welcome to another video of LRDI. Once again, in this video, I'm going to discuss one very interesting quant-based puzzle set. So for your CAT preparation or that kind of exams, this is going to be extremely important. So watch this video till the end and don't forget to hit the like button, do share it with all your friends. So let's look at the set and then you can give a try for that and then you can watch the solution. Make sure that you are trying this set first by your own. Don't just watch the video completely. First, if you want, you can pause the video over here and you can give a try and then you can post in the comment section how many questions have you answered correctly and then you can watch the solution. Okay, फाइन चलो. सो आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर लेना. एंड या this is the URL from where you will be able to access more such videos. I have conducted plenty of free LRDI sessions on Unacademy Learning app. तो आप Unacademy Learning app पे मेरे प्रोफाइल को फॉलो करके मेरे वीडियोस देख सकते हो. जब भी आपको फ्री वीडियो देखना है तो आपको एक कोड यूज़ करना होगा, अनलॉक कोड. तो वहाँ पे आप शाह10 यूज़ कर सकते हो जैसे यहाँ पे मेंशन किया है. So let's look at the set, guys, and here is that set. So it's about five batsmen and the runs scored by them and the balls faced by them. This is not a games and tournament set because it has nothing to do with that game of cricket. It's mainly about playing with numbers. Okay, so it says that there are five batsmen A, B, C, D, which belongs to exactly one team among Rajasthan, Bangalore, Mumbai, Kolkata, and Punjab, not necessarily in that order, and no two of them belong to the same team. And in a 2020 tournament, the total runs scored by each of them is unique and is among these values. Similarly, the number of balls faced by each of them is a multiple of 4, and each of them faced at least 16 balls and at most 36 balls. सो मतलब नंबर ऑफ बॉल्स जो उन्होंने फेस किए वो 16, 20, 24 अप टू 36 कुछ भी हो सकता है. एंड द रन स्कोर्ड पर बॉल बाय ईच ऑफ देम इज एन इंटीजर एंड इट्स नॉट मोर देन 4. दैट मीन्स समवन हु हैज स्कोर्ड से 96 रन्स, so he must have faced at least 24 balls or he must have faced 32 balls or something like that. Of course 48 is not possible because runs scored per ball has to be an integer. So if he has faced 24 balls, then his run scored per ball will be 4, and if he has faced 32 balls, his run scored per ball will be 3. So something like this. I'm not solving the set, I'm just giving you the information about what is mentioned. Now you are given some more points, so go through that and then try for this question. So here is the first question on your screen: who among the following belongs to Team Punjab? Now you will have to figure out this thing. For to answer this question, you will have to solve it. You will have to understand कि कौन से बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए, कौन से टीम से है. तो ये आपको यहाँ पे फिगर आउट करना पड़ेगा. उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस एंड ट्रिक्स लगेंगे आपको. So give a try once again. That is a Tita question. What is the difference between runs between the scores of the batsmen of Team Kolkata and that of Team Rajasthan? Here is question 3, and yeah, one more question over here. ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करो और फिर आप ये सोल्यूशन देख सकते हो. चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं. उससे पहले जस्ट एक चीज़ जो मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आप प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप मेरा कोड चार्टन यूज़ कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट प्रॉपर गाइडेंस नॉट ओनली अबाउट कैट प्रिपरेशन but also for exams and your profile building and your overall score maximization strategy. So it's definitely worth giving a try for the subscription. Link description में आप देख सकते हो उसके लिए. Now I'm assuming कि आपने ये try किया होगा and all of you are ready to verify your answers and understand कि कैसे ये set solve होगा. तो इसको solve करते हैं step by step, right? अब यहाँ पे कैसे शुरू करेंगे, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे रन्स दिए हुए हैं, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उससे मैं लिख सकता हूँ रन्स क्या हो गए और बॉल्स क्या हो गए. मुझे नहीं पता है कि कौन से बैट्समैन के 96 है एंड सो एंड सो फोर्थ. तो रन्स मेरे क्या है असेंडिंग ऑर्डर में मैं लिख देता हूँ. तो 64 है, 72, 80, 96 एंड 112. अब जो बॉल्स है वो हमें पता है 16 से 36 के बीच में ही होने चाहिए एंड रन्स पर बॉल should be an integer. That means number of balls should be a factor of number of runs, and that's why we call it quant based puzzle. ठीक है ना. चलो, तो अब इसको देखते हैं कि 64 जिसने रन्स किए हैं उसने बॉल्स कितने फेस किए हो सकते हैं. 16 या 32 ही किए हो सकते हैं क्योंकि 16 से 36 में यही दो फैक्टर आते हैं आपके 64 के. सिमिलरली जिसका 72 रन है उसका 18, 24 या 36 बॉल्स हो सकते हैं. जिसके 80 रन है, ठीक है ना, तो उसके बॉल्स 20 हो सकते हैं क्योंकि रन्स पर बॉल 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना. तो इसलिए
80 में 16 नहीं आ सकता क्योंकि 16 फाइजा 80 हो जाएगा। सिमिलरली 96 है तो क्या आ सकता है, 24 फोरजा या 32 थ्रीजा, यही दो आ सकता है। और 112 रन जिस बैट्समैन के, उसने डेफिनेटली 28 बॉल्स फेस किए होंगे, क्योंकि एक ही फैक्टर ऐसा है, एक ही नंबर ऐसा है 16 से 36 के बीच में जो 112 को परफेक्टली डिवाइड करता है, राइट। तो ये हमें यहाँ तक पता चल गया है। अब अगर मैं पहला पॉइंट देखता हूँ तो मुझे क्या दिया हुआ है, पहले पॉइंट में मुझे दिया हुआ है रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ऑफ मुंबई इज 24 मोर देन सी, ठीक है। अब कौन सा यहाँ पे रन का डिफरेंस है जो एग्जैक्टली 24 का है? सो कहने से देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ रन्स जिसमें डिफरेंस 24 का है, 72 एंड 96। इसके अलावा किसी में भी डिफरेंस आपका 24 का नहीं है। 64 प्लस 24 करेंगे तो 88 होगा, 80 प्लस 24 करोगे 104 होगा, तो कोई भी डिफरेंस आपका नहीं बन रहा है। सो मुझे पता चल गया कि बैट्समैन द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ऑफ मुंबई इज 24 मोर देन सी, ठीक है। तो कहना से मुंबई का जो आपका रन है वो 96 होना चाहिए। बैट्समैन तो मुझे नहीं पता है। और बॉल फेस्ड उस केस में क्या आ जाएंगे, 24 या 32, कुछ भी बॉल्स हो सकते हैं। और जो बैट्समैन सी है उसके 72 रन है। अब मुझे नहीं पता है सी कौन सी टीम को बिलोंग करता है। तो इतना डेटा हमारे पास अभी के लिए है, राइट। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ऑफ टीम बैंगलोर एंड राजस्थान इज हाफ द डिफरेंस बिटवीन रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन डी एंड डी। तो ये पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको साइड में रख देते हैं। लेट्स लुक एट दिस पॉइंट। नो वन स्कोर्ड लेस रन्स पर बॉल देन द बैट्समैन हु स्कोर्ड 16 रन्स लेस देन दैट स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ऑफ टीम कोलकाता, ठीक है। तो किसी ने जो कोलकाता का बैट्समैन है उससे 16 रन कम स्कोर किए हैं। कोलकाता का जो बैट्समैन है उससे 16 रन कम स्कोर किए एक बैट्समैन ने, ठीक है। मुझे नहीं पता है वो बैट्समैन कौन है। एंड नो वन स्कोर्ड लेस रन्स पर बॉल देन द बैट्समैन हु स्कोर्ड 16 रन्स लेस देन द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ऑफ टीम कोलकाता। और इसके जो रन्स पर बॉल है वो सबसे कम होने चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपका। तो बैट्समैन ऑफ कोलकाता, अगर मैं यहाँ पे 96 लेता हूँ यहाँ पे, तो ये 80 आ जाएगा। बट 96 तो हमें पता है ऑलरेडी मुंबई का है, तो यहाँ पे 96 तो आ नहीं सकता। सो कोलकाता के बैट्समैन के रन्स कितने हो गए, 80 होगा। और ये जो बैट्समैन है उसका 64 होगा डेफिनेटली। और कोलकाता के बैट्समैन के बॉल 20 हो गए, और इसका रन्स पर बॉल सबसे कम होना चाहिए। तो कहने से ये 32 ही होना चाहिए, क्योंकि 16 ले लिया हमने तो 16 फोरजा 64 हो जाएगा। और हमें पता है ये भी 4 है एंड ये भी 4 आ जाएगा रन्स पर बॉल, तो इसीलिए यहाँ पे 32 होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि कोलकाता के बैट्समैन ने 80 रन स्कोर किए हैं, 20 बॉल फेस किए हैं। और जो ये एक बैट्समैन है जिसने 64 रन किए उसने डेफिनेटली 32 बॉल्स फेस किए हैं। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया, ठीक है। सो ये वैल्यूज हमने अब तक यहाँ पे रख दी है। अब आगे देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ऑफ टीम बैंगलोर एंड राजस्थान is half the difference between the run scored by batsman of D batsman D and E, ठीक है। ये पॉइंट में जो एक बैट्समैन वाला पॉइंट है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। देयर इज अ बैट्समैन जिसने 64 रन से उसके एंड बॉल्स उसके कितने थे, 32 ही है। इनफैक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सीधा इतना ना लिखे, हम यहाँ पे भी कर सकते थे कि 64 में 32 ही आएगा। ये हमें पता चल चुका है, राइट। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस पॉइंट। The difference between runs scored by batsmen of team Bangalore and Rajasthan. So we are talking about two teams, Bangalore, Rajasthan. उसके बीच में जो रन का डिफरेंस है, इट इज हाफ द डिफरेंस बिटवीन रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन डी एंड ई। डी और ई के जो रन्स का डिफरेंस है उसका हाफ आपका बैंगलोर राजस्थान का जो स्कोर है वो है, ठीक है। बैंगलोर राजस्थान के बीच में जो रन का डिफरेंस है वो है, वो क्या है, हाफ है डी और ई के रन्स के डिफरेंस का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होगा, इसको अच्छे से समझते हैं। पहले तो यहाँ पे मुझे दो ऐसे नंबर देखने हैं जिसमें जो डिफरेंस आ रहा है उससे डबल डिफरेंस दूसरे दो नंबर में आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 64 एंड 72, डिफरेंस मेरा 8 का हो गया, तो दूसरे मुझे दो नंबर मिल जाएंगे जिसमें डिफरेंस 16 का है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा लेता हूँ 16 का, तो कोई भी नंबर ऐसे नहीं है जहाँ पे डिफरेंस आपका 32 का हो जाए, है ना। जैसे यस 80 एंड 112 का आपका डिफरेंस 32 का है, बट 80 हमें पता है कि ऑलरेडी कोलकाता का है, राइट। तो यहाँ पे हमें ये पॉसिबिलिटी लेनी होगी।
अगर मैं सपोज यहाँ पे बेंगलोर और राजस्थान में कोई एक टीम लेता हूँ, मुझे अगर यहाँ पे 80 एंड 112 लेना है, ठीक है, तो ये 32 का डिफरेंस होगा। यहाँ पे 16 डिफरेंस लाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, 64 80 या 80 96। पर आपको पता है कि ये तो 96 80 दोनों मुंबई कोलकाता को असाइन हो गया, इसलिए ये 32 पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। सो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर बेंगलोर राजस्थान इज 64 72। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस हमें रखना है 16 का। सो कौन से दो नंबर का डिफरेंस 16 है, तो 80 96 या फिर 112 96, ये दोनों में डिफरेंस आपका 16 का है। सो हमें ये तो पता चल गया कि बेंगलोर राजस्थान के प्लेयर्स के जो रन है वो 64 72 ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 72 64 64 72, ऐसा हमारा आएगा। ठीक है, राइट। ओके, अभी डी और ई उसमें हमारा 80 96 112 96 ऐसा कुछ है ना। ओके, हम्म, अब इसको कहाँ पे फिट करेंगे, लेट्स सी, चलो। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में एक और चीज लिखी हुई है, ई डज नॉट बिलोंग टू टीम मुंबई। ठीक है, और मुंबई के कितने 96 है, तो डेफिनेटली 96 तो आएगा, और 96 ई का नहीं है, तो 96 किसका होना चाहिए, डी का होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे ये भी पता चल गया कि प्लेयर डी हैज स्कोर्ड 96 रन। अब ई का क्या हो सकता है, तो ई का 80 भी हो सकता है, 112 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं सपोज ई का 80 लेता हूं, ठीक है, तो हमें आगे क्या लिखा है, बी फेस द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स एंड स्कोर्ड 8 रन्स मोर देन अ बैट्समैन हु इज नॉट अ प्लेयर ऑफ टीम बैंगलोर। राइट, सपोज मैंने ई का यहां पे ले लिया 80, तो बी फेस द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स एंड स्कोर्ड 8 रन्स मोर देन अ बैट्समैन हु इज नॉट अ प्लेयर ऑफ बैंगलोर। सो बी ने 8 रन ज्यादा स्कोर किए हैं, किससे, जो बेंगलोर का प्लेयर नहीं है उससे। ठीक है ना, राइट। सो अब बी को हम क्या लेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे बी 72 ले लेता हूँ, तो बेंगलोर का प्लेयर 64 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं बी को 72 ले लूँ, तो बेंगलोर राजस्थान का प्लेयर 64 आ सकता है। कि ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपने बी 64 ले लिया, सपोज एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, तो राजस्थान का प्लेयर का आप 72 ले लो। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, सॉरी, बी का 72 ले लो, 8 रन मोर देन द प्लेयर हु इज नॉट द बैट्समैन हु इज नॉट अ प्लेयर ऑफ बैंगलोर। तो यहाँ पे 64 ले लो, ऐसे कुछ ले ले, तो क्या ये चलेगा, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ओके, अब एक चीज प्रॉब्लम है, देखो बी के 72 हो ही नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सी का 72 है। राइट, तो बी का 72 नहीं हो सकता, तो बी का नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, कैन आई से 80 इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर बी। अगर बी का 80 है, सो यहाँ से 80 चला गया, तो ई का क्या होना चाहिए, 112 होना चाहिए। तो 112 कहाँ पे आएगा, सिर्फ पंजाब में आ सकता है। तो हमें ये चीज़ पता चल गई, और उसमें बॉल्स तो डेफिनेटली 28 आ जाएगा। अब बी ने 8 रन ज़्यादा स्कोर किए, किससे, एक ऐसे प्लेयर से जो बेंगलोर का नहीं है। तो डेफिनेटली हम राजस्थान में 64 ले लेते हैं, सॉरी, राजस्थान में 72 ले लेते हैं, बेंगलोर का 64 ले लेते हैं। सो कैन वी से बी ने राजस्थान के प्लेयर से 8 रन ज़्यादा स्कोर किए, तो ये भी हमें पता चल गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे बॉल स्पेस्ड हम एग्जैक्टली अभी तो नहीं बता सकते, राइट। अभी हमें एक चीज पता है कि 64 में 32 बॉल्स है, राइट, 64 में 32 बॉल्स है, ये तो हमें पता चल गया। ओके, सी 72 रन्स वाला है, तो सी यहाँ पे लिख दिया। अब इसके यहाँ पे बॉल्स कुछ भी हो सकते हैं, 24 18 24 36 हो सकता है। बट यहाँ पे एक चीज हमें बताइए कि नो वन स्कोर्ड लेस रन्स पर बॉल देन द बैट्समैन हु स्कोर्ड 16 रन्स। नहीं, ये भी नहीं चाहिए। हाँ, look at this. B faced the least number of balls and scored 8 runs more than a batsman who is not a player of team Bangalore. So B ने लीस्ट बॉल फेस की है, तो 20 इज द लीस्ट वैल्यू। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 18 नहीं हो सकता, तो ये 24 एंड 36 ही हो सकता है। तो इतना डेटा हमें मिल रहा है। अच्छा, बचा कौन है, ए, तो ए डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम नहीं निकाल सकते। तो एक काम करते हैं, अभी हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या इससे हमारा काम हो जाता है।
सो हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू टीम पंजाब? सो डेफिनेटली इट्स ई विथ 112 स्कोर। तो ये हो गया हमारा। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्कोर ऑफ बैट्समैन ऑफ टीम कोलकाता एंड दैट ऑफ टीम राजस्थान? तो कोलकाता और राजस्थान का डिफरेंस क्या है? तो 72 एंड 80, तो डिफरेंस 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिख दिया। तो अब मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपके कितने सही हुए, मत भूलना कमेंट करना, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय बैट्समैन ऑफ टीम राजस्थान? तो राजस्थान के बैट्समैन ने कितने बॉल फेस किए? तो 24, 36 कुछ भी हो सकता है। तो कान भी डिटरमाइंड आ जाएगा। एंड सिमिलरली ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हम ये क्वांट बेस्ड पजल को कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया है। जो 2 पजल मैंने आपको दिया, आगे भी मैंने क्वांट बेस्ड पजल दिया था कल, इससे पहले मैंने रूट्स एंड नेटवर्क का आपको पजल दिया था। तो ये सारे हाई क्वालिटी पजल से आप ये पजल सॉल्व करते रहो, आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन होगी। साथ में आप अनअकैडमी की बुक से या फिर मेरे जो प्लस कोर्सेज है उसके क्वेश्चन कर लेते हो, यू कैन डेफिनेटली बी रेस्ट एश्योर कि आपके आपके सारे वैरायटी के अलग अलग टाइप के सेट्स आपने सॉल्व किए। एंड अगर कोई एक नई वैरायटी आती है आप उसको टैकल कर पाओगे। सो कीप लर्निंग विथ मी गाइस। एंड या एज आई मेंशन अर्लियर, you can use code charted when you go for plus or iconic, and do let your friends know about this. बाकी ये श्योर कर लेना कि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है, ताकि ये जो भी सेट्स में वीडियो रिलीज करता हूँ उससे पहले मैं उसका पीडीएफ ग्रुप में डाल देता हूँ। तो आप पीडीएफ से भी क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। सो मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसे लगा ये वीडियो, ये पर्टिकुलर सेट। क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लगा? आप इसको कैसे रेट करोगे? वॉज इट ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? कैसा रेट करोगे? ये मुझे ज़रूर से बताना। That's it guys, stay tuned for more videos. Till then, bye bye and take care.